Good morning, sir. हमारे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें भाई। बच्चे तो बहुत कम है। गुड टाइम मॉर्निंग। चेंज करना पड़ेगा आई थिंक इसका कुछ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है स्टार्ट करते हैं अपना। यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। सो हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे इसमें एंड 3 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए रहेंगे। सो फर्स्टली स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। करप्शन बेस्ड क्वेश्चन है और जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता है वो इसमें लिखना है आप लोगों को। ठीक है तो इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। और मोस्ट प्रोबब्ली आई गिव यू 7 to 8 मिनट्स, 8 to 9 मिनट्स। इसमें इतना ही टाइम लगेगा आप लोगों को। ठीक है 6:31 पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इसका।
किसी ने कंप्लीट किया? ये सब मैंने थोड़ा सा लिखा है। हाँ बताइए सवाल। सर मैंने स्टार्ट किया था, करप्शन इन एनी फॉर्म इज essentially essentially divided from the principles of the principle of the probate, integrity and accountability. Why corruption actually corrodes developments? तो मैंने erodes public trust फर्स्ट पॉइंट लिखा था, as गांधी जी hails means are as important as ends. Corrupt means destroy moral legitimacy. एंड इसमें मैंने मध्य प्रदेश वाला जो स्कैम हुआ था वो मेंशन है। एंड द सेकंड पॉइंट वाज द डिस्ट्रॉय ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, करप्शन राइट फाउंड फ्रॉम मेरिट बेस्ड यूनिट्स टू रेंट सीकिंग एक्टर्स। इसमें मैंने द कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्कैम हुआ था वो मेंशन किया है। एंड द थर्ड पॉइंट वाज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस। मैंने यहाँ पे लिखा है द लीकेज राइजेस प्रोजेक्ट कॉस्ट मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू डेवलपमेंट टू इफेक्टिव डेवलपमेंट। एंड इसमें वर्ल्ड बैंक स्टडीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मैंने मेंशन किया है जिसमें 20 to 30% कॉस्ट करप्शन में चला गया था। दैट्स पॉइंट। ये तीन ही मैं लिख पाई हूँ सर। और आई मीन कंक्लूजन में मैंने सिर्फ एक लाइन लिखा है कि just as fish moving in water cannot be known when they drink water. So this is the quote I use as a conclusion. ओके रितु। Hello, good morning, sir. हाँ बोलिए। Sir, I have started the question with the Corruption Perception Index and rank of India, that it ranks 96 out of 180. This is the beginning. Then I have mentioned that it has multifaceted implications. So I have made a diagram where I have written multifaceted implications and various stakeholders on which there is implication of corruption, like government, bureaucracy, citizens, society, international concerns. Like that, I have made a diagram. Then I have given the heading that corruption as an unavoidable necessity, where I have given points like it is a necessary evil, fasten the process of file clearances, leading to faster project developments, and then it leads avoiding of red tapeism, welfare benefits reaching to the rightful intended beneficiaries. Then these 2 3 points I have given. Then I have given another heading where undeniable vice equals to crores gears of development. Here I am given points. Only a short-term pleasure leading to long-term pains, unsustainable, it is unsustainable. Example of Mumbai hoarding case. Second, wrong means cannot justify right ends, categorical imperative of Khan. Example, Commonwealth scam. Third, it denies sanctity of life by putting a price to it. Fourth, against bureaucratic ethos of probity and integrity in public services. Fifth, erodes trust of people in governance, weakening foundations of democracy. Sixth, denies one's rightful dues to them, according to justice theory of John Rawls. Then I have given the conclusion that it is a manifestation of misuse of power given to public office holders and hence an undeniable vice which does not oil the process of development but only corrodes it. बढ़िया बढ़िया। एक बार मुझे शेयर भी करना दे तो अपना आंसर है ना। Okay, sir. Okay, thank you, sir. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी एक बार ये देख लेते हैं। Corruption has multifaceted implications. Some consider it is undeniable vice, while others contend it to be an unavoidable necessity for navigating the bureaucratic complexities. In your opinion, आपका opinion जानना चाह रहा है, does corruption oil or corrode the gears of development? Substantiate your arguments. तो सबसे पहले करप्शन का एक डेफिनेशन या जो भी आप जैसे इन्होंने मल्टी इंडेक्स से स्टार्ट किया था तो वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं और आप बेसिकली डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो करप्शन रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू एथिकल गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट while some justify like necessary lubricant for navigating bureaucratic delays.
Corruption ultimately corrodes institutions, weakens public trust, and undermines development. A deeper ethical evaluation clearly shows that corruption damages far more than its benefits. So this is like contextual introduction मैंने कोशिश की गई है according to the question. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर बेसिकली करप्शन के लिए एक डायग्राम भी बना सकते हैं हम लोग, अगर बनाना चाहें तो। ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल, सोशल, और यहाँ पर आएगा अपना कल्चरल। ठीक है, अब इसी के अंदर ये जो पार्ट रहेगा ये आ रहा है करप्शन, और इनको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। सपोज अगर इफ आई टॉक तो हिस्टोरिकल में कॉलोनियल, सीक्रेसी और मास्टर सर्वेंट एटीट्यूड, दिस इज फॉर द हिस्टोरिकल। ठीक है, कल्चरल में हिरार्किकल, डिस्क्रिमिनेटरी और डोमिनेटिव, एंड फॉर द सोशल lacks of मोटिवेशन, यहाँ पर एक और honest gets punished, and then culture of acceptance, culture of acceptance। तो इस टाइप का एक डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हो अपना एक। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला भी देखेंगे इसका करप्शन का। अब यहाँ पर देयर आर सम आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन करप्शन ऑयल्स द गेट्स ऑफ द, there are short-term benefits. Expediency, people believe corruption speeds up approvals in a rigid bureaucracy. Example, bribes to clear files in permit heavy sectors like construction, जो भी टेंडर वगैरह लेते हैं उस टाइप से। ठीक है, then ensure faster access of public services, instrumental benefit, like in dysfunctional systems people see bribes as a shortcut, like informal payments for hospital beds and driving licenses. Incentivized low paid officials, misguided utilitarianism, उसमें some justify corruption due to low wages in certain departments, like ground level staff expecting speed money for field inspections. So these are the like daily routine में जो आप लोग भी देखते होंगे, वही सब examples हैं। Then why corruption actually corrodes development, जो reality में these are the short term benefits थे, ये reality में violates ethical values like integrity, accountability and justice. Corruption breaks constitutional morality, like Sanjeev Chaturvedi ji ka IFS exposed major corruption in AIIMS procurement, faced harassment but upheld integrity. Then distorts development priorities, like moral hazards की बात कर रहे हैं, projects chosen for bribes not public welfare lead to poor outcomes, like Sridharan का example है Metro Man, ensured corruption free execution of Delhi Metro, his clean leadership shows that development thrives without corruption. Then increases inequality, distributed justice की injustice की बात करेंगे, corruptions benefits the powerful, harms the poor, like खेमका, अशोक खेमका जो हमारे yes, cancel illegal and land deals with hard common citizens despite political pressure. अशोक खेमका ही थे ना ये, कोई एक कंफर्म करो। यस सर, अशोक हाँ सर। खेमका। ठीक है, weakens rules of law and citizens trust, like people lose faith in governance when bribery becomes normalized, like Julio IPS थे, build public trust through transparent policing, opposed corruption in Punjab police, reduce economic efficiency, corruption raises transaction cost, discourages investment, World Bank estimates corruption reduces GDP 4 to 5% annually, then destroys moral of the honest officers, like unethical officers flourish, discouraging integrity in young officers, like Manjum Nath का एक IOC officer थे, killed for exposing fuel filtrations, एक Vijayanand IAS refused illegal sand mining permits despite political pressure, and एक Sagem IAS granite mining scam worth crores in Tamil Nadu. Then
Last one is environmental corruption leads to irreversible harm. Bribes for illegal mining, logging, and pollution clearances hurt sustainability. Suspension show high cost of fighting corruptions. Then there are some like ethical schools showing why corruption cannot be justified. Like Kantian ethics, corruption violates universal moralities. फिर अपना यूटिलिटरिज्म में harm to society outweighs temporary benefits. गांधीनगर में corruption is against truth, सत्य, non-possession, aprigra. Then virtue ethics contradicts honesty, courage, and public duty. Constitutional morality violates equality and dignity and justice. These are the points. Then the conclusion. While corruption may appear oil the system in short term, it corrodes development, weakens institutions, separates inequality, destroys any ethical governance. Like examples of honest civil servants like Shridan, Nagpal, Sam, Khemka, proves that integrity, not corruption, is a true engine of public welfare and sustainable development. अब ये कुछ टॉपर्स कितने लिखे हैं. Like corruption refers to the misuse of public position and office of personal gains, like monopoly, discretion, accountability equal to corruption. Monopoly plus में discretion minus में accountability is equal to corruption. ठीक है. अब इसी को मैं एक दूसरे फ्रेमवर्क में भी एक डायग्राम बना सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर आएगा करप्शन इक्वल टू मोनोपोली, सीक्रेसी और डिस्क्रिशन. मोनोपोली से डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन से सीक्रेसी, सीक्रेसी फिर से मोनोपोली. ठीक है. देन इससे होगा एथिकल कोलैप्स. ठीक है. इससे माइनस में क्या करेंगे, अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. ये आप फॉर्मूला बना सकते हो, इसी के बेसिस पे फॉर्मूला बना है. ठीक है. इस टाइप का कुछ आप बना सकते हो यहाँ पर. देन इन्होंने मल्टी फैक्टोरियल इम्प्लीकेशन लिखा है. गेटिंग वर्क डन फास्टर, मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी, प्राइवेट गेन ओवर पब्लिक गेन, कलर्ड करप्शन, इंस्टीट्यूशनल करप्शन लाइक फिक्स्ड मनी. देन फिर से एक एग्जांपल में करप्शन इज अ पैरासाइट ऑफ इकोनॉमी. ये इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी. देन दे हैव गिवन द इम्प्लीकेशन ऑफ द करप्शन. एनवायरमेंटल का अफेक्ट्स इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, ब्लैक मनी अगेंस्ट सोशल जस्टिस, वेलफेयर. सो आप लोग भी ऐसा कुछ एक फ्रेमवर्क बना सकते हो इंट्रोडक्शन. जैसे मैंने स्टार्टिंग में वो दिखाया था करप्शन का वो वाला, या फिर इसका कुछ इम्प्लीकेशन ऐसा बना सकते हो. देन corruption is a unique in South Asia because it leads to promotion in the not punishment. चलता है कल्चर वाला जो है, attitude in society has normalized corruption. ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्योंकि will use चलता है कल्चर in our body part. ठीक है. यहाँ पर one good point, like most sales in India are also present in other countries of South Asia. So mentioning evil of India, you may write South Asia instead of India. This way you sound like persistent critic. इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे. मैंने थोड़ा मेंशन कर दिया लेकिन अवॉइड करेंगे इसको भी. ठीक है. यहाँ पर अब एक महात्मा गांधी का कुछ उन्होंने कोट से स्टार्ट किया था. फिर इम्प्लीकेशन ऑफ द करप्शन. आप देख रहे होंगे हर एक रैंकर या टॉपर जो भी थे वो इम्प्लीकेशंस जरूर मेंशन करें. तो यू विल आल्सो गिव सम वहां पर कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ मेंशन करके और उसमें एक पॉइंट आउट कर दो. फिर देयर आर गुड पॉइंट्स. उसमें करप्शन ऑयल्स में क्या लिख सकते हैं, मेक थिंक फास्टर, फास्टर provision of services, save time, save litigation time for the driving channels. ठीक है. तो ये corruption in the short term जो हमने बताया था सबसे पहले, जिसमें people think that it is a oil for the bureaucratic delays, low salary, overworking and understaffed, lack of accountability. These are the basic वाला. फिर हमने देखो वो जो इंट्रोडक्शन में लिखा था, हमने यहाँ पर पॉइंट में लिखा है चलता है एटीट्यूड, करप्शन प्रीमियम, एजुकेशन सिस्टम इश्यूज, सेंसिटाइजेशन ऑफ द करप्शन. यहाँ पर एक कुछ उन्होंने बसों का एग्जांपल दिया चलता है एटीट्यूड में. ठीक है. फिर फास्टर सर्जरी डिलीवरी, ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं. ये आप लोग पूरा इसको रीड करोगे करप्शन का, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा इसमें. फिर यहाँ पर करप्शन कॉरिडोर्स की बात की है. पूर पीपल कैन नॉट बी थिंग्स डन, पॉलिटिकल फंडिंग रिमेन्स ओपेक एंड देन परपेट्रेट्स पब्लिक सिंक्रोनिज्म. तो इस टाइप के कुछ पॉइंट्स आप यूज करोगे. ये सेम रिपीटेशन मोड है. इसमें इन्होंने कैग का मेंशन जरूर किया, कैग रिपोर्ट ऑन द करप्शन इन आयुष्मान भारत स्कीम. तो you'll give these type of example like misuse of the public purse में आप ये examples को use कर सकते हो. Then Bibab Dubroeka, we regrets on the commencing as must 1% of GDP. तो ये भी आप mention कर सकते हो.
affects public trust, criminalization of the politics, nepotism का है, after affects environmental like CPR mining की बात कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया इस पॉइंट्स को। अब कुछ लोगों ने ऐसे भी यूज किया करप्शन में, एक में करोड़ का like wise और exam oiling unavailable necessity का, petty bribes to set file rolling often for the self gain, so they have given like a differentiate format, तो आप ऐसा भी कुछ यूज कर पाओ तो कर सकते हैं। देन इन्होंने कुछ वे फॉरवर्ड भी इसमें लाइक गाइडेंस, विजिलेंस एंड देन वे फॉरवर्ड। गाइडेंस में कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, लाइक वे फॉरवर्ड में सिटीजन एम्पावरमेंट, सिटीजन चार्टर एंड देन विजिलेंस में आरटीआई, सीबीसी, ग्रीवेंस रेजोल्यूशन। तो ये कुछ हम लोग लास्ट में बना सकते हैं बिफोर कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, रिड्यूस करप्शन का इंटीग्रिटी प्लस, ठीक है, पीसीए एक्ट आजकल प्लस का तो काफी ज्यादा चल रहा है। देन दे हैव गिवन द गुड कंक्लूजन, सो इन दैट कंक्लूजन एपीजे अब्दुल कलाम का ने मेंशन किया है, एक ने यहाँ पर पंच प्राण करके एक मेंशन किया है मोदी जी का, जो उन्होंने बोला था रेड फोर्ट पे करप्शन क्विट इंडिया ऐसा। ठीक है, तो वो, या फिर शील परम भूषणम जो हमारा लवासना का कोट है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, मोटो इसका लवासना वाला। ठीक है, तो बेसिक आंसर था करप्शन पे, ऑलरेडी आप लोगों ने काफी सारा पढ़ रखा है, तो इसलिए इसमें ऑलमोस्ट सब लोगों ने लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो बनाया होगा, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज और मैंने भी कुछ क्वेश्चंस में इसको कवर किया है। ठीक है, तो बेसिकली अब सेकंड स्टार्ट करेंगे इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैन बी moral? Because it strengthens he will. Swami Vivekananda, in his perspective, discuss the significance of morality for bringing efficiency and effectiveness in public administration. So do you think moral rigidity can be a hindrance in good governance? So इसको देखते हैं एक बार, इसमें मैं 3 से 4 चीज आपको बताऊंगा, एक बार इसको स्टार्ट करेंगे पहले। तो अभी 6:48 हो गया है। 6:57 पे स्टार्ट करेंगे।
कंप्लीट हुआ किसी का? नवाज, आपने क्या? यस सर, कंक्लूजन बचा है, मैं बता दूं। हाँ हाँ, बताओ बताओ, अभी बताओ, जितना हो गया उतना बताओ। I have started with morality in public administration translates into ethical conduct, integrity, accountability among civil servants and leaders. These qualities flowing from strengthened will are crucial for optimal performance. And next is significance of morality in public administration. First point is it ensures integrity. Strong moral compass resists corruption, nepotism, and political pressure. Example Ashok Khemka. Next, it fosters public trust and legitimacy. When public trust government, they are more likely to comply with regulation and participate in the governance process. Example Armstrong Pame, who built People's Road with the help of public funding. Next, accountability and responsibility. Administrators with strong moral accept responsibility for their actions and decisions. Um, Example, E. Sridharan during Delhi Metro project. Next is efficiency in decision making. A clear moral framework provides a non-negotiable basis for their actions. The next part is moral rigidity as a hindrance. I have written it in two parts by making chart yes and no. In yes part, I have written moral rigidity create hindrance as it creates inability to adapt, red tapeism, complacency, bring elitist attitude in civil servants, lack of innovation and creativity, lack of empathy and tolerance for public issues. In no part I have given it gives clarity of decisions, promote predictability and rule of law. It acts as a deterrent against deviation and ensures consistency. That's it. I have not written conclusion yet. Okay, okay. Any other student? किसी और ने लिखा अभी? सर सुजीत बताओ। इसको पहले स्टार्ट किए हैं सर कि स्टेटमेंट ऑफ स्वामी विवेकानंद हाईलाइटेड द एसेंस ऑफ मेटा एथिक्स व्हिच डील्स विद व्हाई टू बी एथिकल एंड व्हाट इज एथिक्स। फिर सर इसका जो फर्स्ट पार्ट है व्हाई टू बी मोरल उसको टैकल किए हैं सर। टू बिल्ड कैरेक्टर एज पर वर्च्यू एथिक, टू डू आवर ड्यूटी एज पर डियोंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, टू अचीव गुड consequences एज पर टेलियोलॉजिकल स्कूल। फिर इसका सर सिग्निफिकेंस ऑफ मोरालिटी in bringing efficiency and effectiveness in public administration. Efficiency means sir getting most output from input. Example transparent coal auction and policy by Anil Swarup. Getting right outcome. Example DMRC under E. Sridharan. Decreased transport footprint in Delhi. Achieving Antyodaya upliftment effectively. Example Kudum Siri program by Aruna Sundar Rajan. Empowered women. Fourth, sir, avoiding conflict of interest. Example CJ Chandrachud rescues from Kamra contempt case. Avoiding या solving ethical dilemma. Example SR Sankaran
Ideal people IS officer address dilemma between setting up development project and right of marginalized. फिर सेकंड पार्ट अभी टैकल करने लग गया था सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो एक बार इसका देखते हैं क्या इसका हम लोग क्या आंसर बना पा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछा है इन्होंने यहाँ पर, व्हाई शुड अ मैन बी मोरल, देन बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स ही विल, स्वामी विवेकानंद का इन्होंने मेंशन किया है। इन दिस पर्सपेक्टिव डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मोरालिटी फॉर ब्रिंगिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डू यू थिंक मोरल रिजिडिटी कैन बी हिंड्रेंस इन गुड गवर्नेंस? ठीक है, बेसिकली वो गुड गवर्नेंस रिलेटेड भी बात करना चाह रहा है। तो देखते हैं, मैंने इसमें 2 इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश की है जिसमें ऑलमोस्ट दोनों सेम थीम पे ही हैं, बट थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। एक में क्वेश्चन का फॉर्मेट दे दिया और एक अलग से बनाया है। तो स्वामी विवेकानंद स्टेटमेंट हाइलाइट्स morality is the as the inner force that strengthens as individual, like willpower, clarity, courage, self-defense. These 4 keywords you'll use in your answer. Then in public administration, moral strength becomes the foundation of efficiency, effectiveness, and trust-based governance. You'll write your introduction based on Swami Vivekananda statement. We'll use 4 keywords. तो पहले हम लोग उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एंड देन फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मोरल स्ट्रेंथ को अब उसके फाउंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। ठीक है, इसके बाद में भी सेम ऐसा ही, उसमें भी सेम चीजें यही मेंशन की गई है, बस उसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट यूज कर दिया गया है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बिकॉज़ इस बिल कैप्चर्स द फंडामेंटल एथिकल ट्रुथ मॉरलिटी ऑफ पर्सन विद इन। तो हम लोग क्वेश्चन भी दिखा के अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में ये भी बच्चे ही करते हैं वहां पर, लेकिन मैं इसी ओपिनियन की तरफ जाऊंगा कि हम लोग जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे वो डेफिनेशन या स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के वे से ही जाएंगे। ठीक है, देन द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरलिटी फॉर एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है वो है मॉरलिटी इंश्योर्स इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन करप्शन। ठीक है, तो इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन करप्शन, मॉरलिटी प्रोवाइड्स इनर रेजिस्टेंस हेल्पिंग सेव स्टूडेंट्स bribery, nepotism and misuse of the office. With integrity and probity, officers follow rules even without an external supervision, like Ishridan, Metro Man, complete large projects with zero corruption, showing moral conduct, improves administration efficiency. ठीक है, builds public trust and enhance administrative legitimacy. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना जो मेंशन करेंगे, morality में helps officers uphold public trust, making citizens trust policy decisions, high trust, higher compliance, and then goes to improved service delivery. तो आप एक ऐसा भी एक डायग्राम फॉर्मेट में भी इसमें बना सकते हो इस टाइप का, लाइक इनमें टीएन का एक एग्जांपल देके इलेक्ट्रल प्रोसेसेस थ्रू एथिकल कंडक्ट, देन enables fair and just decision making. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर morality ensures objectivity, preventing bias based on caste, religion, politics or status. Example में ethical IS officer implementing welfare schemes like without favoritism, reduce leakages and discrimination, enhance emotional intelligence and ethical willpower. So morality promotes self-regulation, helping administration managers manage anger, ego and stress in crisis like COVID-19, ethical and emotional intelligence. तो कोविड-19 के एग्जांपल भी काफी अच्छा है, इसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं। एनकरेजेस रिस्पांसिबल यूज ऑफ पावर, जिसमें हम ड्यूटी कॉन्सिक्वेंस की बात करेंगे। आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई, जिनकी बात पे फोकस ऑन कम्युनिटी पोlicing, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पुलिस एंड सिटीजंस, प्रमोट सस्टेनेबल एंड पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज। आई थिंक अभी ये बंदा उसमें आ गया ना, पॉलिटिक्स में आ गया ना सर किसी को? बीजेपी ज्वाइन बीजेपी पे morally grounded officers think long term and uphold sustainability and inclusive development, like ethical environmental officers resist illegal mining, protect ecological integrity. तो बेसिकली इसमें अगर मैं मोटा मोटा बात करूं इस इन पूरे कीवर्ड्स को याद करने के लिए, तो एक वर्ड हम लोग इसमें ये बना सकते हैं, आई ट्रस्ट। सो इंटीग्रिटी, जिसमें नो करप्शन की बात की गई है, बेसिकली एफिशिएंसी। ठीक है, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, जिसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, पब्लिक ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस। ठीक है, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल यूज ऑफ पावर।
Then U for understanding empathy. Understanding empathy, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस और फेयरनेस की बात करेंगे हम लोग. Then S for sustainability, long term welfare. T for timelines. Timelines means effective service delivery. ठीक है. कभी भी आप जब किसी भी मेन टॉपिक्स को, जैसे हमारा करप्शन हो गया या फिर अकाउंटेबिलिटी हो गया, इंटीग्रिटी में आ गया, या फिर इस क्वेश्चन में जैसे अभी स्वामी विवेकानंद का आ गया, तो आप इन कीवर्ड्स को बना के रखो अपना. जैसे आई ट्रस्ट, अगर स्वामी विवेकानंद का कुछ आता है तो आई ट्रस्ट बना के रखो, तो उसमें आप फिर अपने जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको मेंशन कर दोगे वहां पर. तो बेसिकली ये चीजें होती हैं जो हम लोग लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हैं. आपको कीवर्ड्स पता होनी चाहिए, आप उनको एक बार जब 5 to 6 टाइम इनको रिवाइज कर लोगे तो ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी. क्योंकि मैंने पूरा अपना ऑप्शनल जो सोशियोलॉजी था वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में फिनिश किया था, छोटा छोटा बना के. और अपना जीएस सब्जेक्ट भी मैं ऐसे ही तैयार करता था, जिसमें छोटे छोटे निमोनिक्स बना के रखता था. अभी आप लोगों के लिए मैं एक बुक भी है किसी की, तो 175 पेज समथिंग है, जिसमें सारे नेशनल पार्क्स, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज वगैरह वो इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कवर कर रखा है. लाइक छोटा छोटा कीवर्ड वो बना के, निमोनिक्स बना के उसका, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, वो भी प्रोवाइड करूंगा. इसके बाद सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट होता है, कैन मोरल रिजिडिटी बिकम अ हिंड्रेंस टू गुड गवर्नेंस. तो भाई यहाँ पर अपना पॉइंट आते हैं एक्सेसिव रूल. अब इसको हम लोग यस और नो दोनों फॉर्म में दे सकते हैं. ठीक है. अब मैंने इसमें यहाँ पर कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स मेंशन कर दिए. एक्सेसिव रूल ओरिएंटेशन कैन डिले डिसीजंस, लाइक रिजिड मोरल एडहेरेंस टू प्रोसीजर्स without contextual flexibility may slow governance, like disaster relief. Insisting on perfect documentation delays aid to vulnerable groups. And the second part is moral absolutism may reduce administrative sensitivity, like strict enforcement without compassion can harm marginalized groups, like rigid anti-enroachment drives without regulation displacement poor families, जैसे अभी दिल्ली में हुआ था रेलवे ट्रैक के पास में. Hampers collaborative governance. Public administrations requires cooperation with public, political executives, NGOs, and citizens. Rigid moral postures may create administrative deadlock, like officer refusing all negotiation during conflict management can worsen tensions. May create conflict with elected representatives, like ethical firmness must be combined with political tact. Frequent transfer हो जाता है अगर उनसे उलझते हैं तो. Honest officer like Ashok Khemka face repeated transfer due to compromising trends. Ignore situational ethics and contextual realities, like ethics is not always black and white. Rigid morality ignores complexities of ground level challenges. Police using minimal force in riots may sometimes need calibrated actions to prevent escalation. There are some ethical balance जिसमें हम कुछ ideal approach करते हैं गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए. Moral submission combined with practical wisdom, like morally strong, empathetic, flexible, context centric. Then example लाल बहादुर शास्त्री का यहाँ पर. Then they give the conclusion part. Morality strength will of public administration by enhancing integrity, fairness, self-regulation, जिसमें हम लोग ethical connection with empathy, flexibility and practical judgment की बात करेंगे. अभी मैं टॉपर कॉपी से पहले एक बार छोटा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पर, जिसमें अगर कुछ भी ऐसा आता है स्वामी विवेकानंद को रिलेटेड, तो आप लोग एक डायग्राम बनाओगे यहाँ पर, इसको नोट डाउन कर लेना मुझे अपना. सबसे पहले आपका 3S आएगा यहाँ पर. 3S में सेवा, फिर यहाँ पर श्रद्धा और सम्मान. सेवा मीन्स सर्विस, इसी में लिख देंगे इसको. सम्मान, श्रद्धा मीन्स फेथ एंड सम्मान मीन्स रिस्पेक्ट. ठीक है. प्लस में बनेगा यहाँ पर करेक्टर ट्रेट्स. ठीक है. फर्स्ट पे आएगा यहाँ पर इंटीग्रिटी, कंपैशन,
एंड इक्वलिटी। ठीक है, तीनों का एथिकल क्राइसिस इक्वल टू एथिकल क्राइसिस टू एथिकल लीडरशिप। ये डायग्राम हम लोग इसमें बना सकते हैं। ठीक है, सर आपने ट्रायंगल के बीच में क्या लिखा? ये करेक्टर ट्रेट्स। ओके। अब इसमें एक चीज और भी हम लोग इसमें एक वो आपने सुना है ना, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द बॉल इज रीच्ड। ये भी सुना होगा कि इसमें, तो वो भी आप एक मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब विवेकानंद का कुछ भी अगर आता है तो इस टाइप का एक डायग्राम आप जरूर बनाओ जिसमें सेवा, श्रद्धा और सम्मान की बात कर रखी हो, एंड देन फिर उसके बाद में इंटीग्रिटी, कंपैशन, इक्विटी इक्विटी। ठीक है, तो एक ये भी बना सकते हो। इसके बाद कुछ टॉपर्स का सर देखते हैं। हाँ, सर एथिकल क्राइसिस टू एथिकल क्या लिखे हैं? लीडरशिप लीडरशिप। मैं धीरे धीरे राइटिंग इंप्रूव कर रहा हूँ मैं भी अभी। तो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन स्वामी विवेकानंद, लाइक उन्होंने वेस्टेड टू पेन क्या लिखा है, टू एक्टिंग मॉरली स्ट्रेंथन one's will, therefore capability capacity दो टू सी का यूज किया है, a moral person will succeed in his endeavor। सो इन्होंने मेंशन किया है वीकन विल करके और एक पर्सन, देन वो गया एक्ट स्ट्रांग विल मॉरली के साथ में, और नॉट एक्ट मॉरली तो उसने वीकन विल हो गया, वीक हो गया उसका। तो आई थिंक थोड़ा सा बहुत ही लूज डायग्राम बोल सकते हैं इसको हम लोग, तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। हाँ, ये हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं लाइक मॉरलिटी, courage, fortitude, moral compass, wisdom, then goes to strength, means willpower to follow conscience। ये एक अच्छा डायग्राम है, आप लोग इसको अभी नोट डाउन कर सकते हो इस एग्जांपल को, ये एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, देन फिर इन्होंने वर्चुअस एप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज thus aiding walking extra mile एग्जांपल है कि मैं स्वामी विवेकानंद का मॉरल नॉलेज, देन ग्रीन रेवोल्यूशन इफेक्टिवनेस का इन्होंने बात किया है, मेंशन कर सकते हैं। देन मॉरलिटी हेल्प्स नेविगेट एथिकल डिलेमा thus allowing swift efficient decision making like पीडी शनाय, जिन्होंने यहाँ पर कर्नाटका में जो बस सर्विसेज थी, अप्लाइड एआई फॉर द बस मैपिंग, रिड्यूस करप्शन के लिए यूज किया था। मॉरलिटी करेज ये दो जगह पे यूज किया है, एक आगे भी एग्जांपल ऐसा ही, यही सेम एग्जांपल यूज किया है। मॉरलिटी encourages innovations for the public welfare, Dr. T. Aaron, like app for the web body relations, like Swamitas for the rural dispute resolution। तो आप ये स्कीम्स भी यूज कर सकते हैं। Bring public goes to the poor with empathy and compassion। और इसमें दिव्या देव रंजन का आप एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें गॉड लैंग्वेज का उन्होंने आदिवासी को सिखाया। फिर रिड्यूसेस नेपोटिज्म करप्शन, है ना, वो एग्जांपल फिर एक आईएएस का एग्जांपल दिया है यहाँ पर, कैबिनेट सेक्रेटरी एलिगेशन ऑफ द नेपोटिज्म में। फिर कुछ ऐसे टेबल्स लाइक यस और नो में भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक मॉडरेटिंग इंटरेस्ट टू द गुड गवर्नेंस, यस में इनोवेशंस ब्रिंग्स स्टीरियोटाइप्स एडिशन पूजा सिंगल का कि इन्होंने मेंशन किया है। देन नो में हेल्प्स ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस बिल्ड्स रिस्पांसिव गवर्नेंस। तो अगर आप लोगों को ये सब नौ में पॉइंट मेंशन करें तो इस टाइप के पॉइंट मेंशन कर सकते हो। देन कंक्लूजन में मॉरलिटी को उन्होंने एक बेसिस पे किया है, ये तो राज्य तथो प्रजा, इस टाइप के आप अपने बना के रखो, लाइक राम राज्य एज ये तो राज्य तथो प्रजा। तो आप ये सब चीजें बना के रखोगे, कुछ कुछ टॉपिक्स पे, जैसे अकाउंटेबिलिटी पे अलग लिख दिया, करप्शन पे अलग लिखा, यहाँ पर गवर्नेंस में अलग लिखा, तो इस टाइप के आप बना के रखो, वो आप काफी हेल्पफुल रहेगी, काफी अलग बनेगा। किसने किया था इसमें, कोई संस्कृत का कोटेशन यूज किया था अभी तक दोनों क्वेश्चंस में? नहीं किया? सर मैंने ये देन वाला जो एक बच्चे ने मोरालिटी, ऐसा मुझे, हेलो हाँ हाँ सर, ये जो अभी सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैन बी मॉरल, इसमें सर मैंने लास्ट में हम्म, कंक्लूजन में मिशन कर्म योगी का यूज किया है सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भाई। अब एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये चैप्टर तो बहुत ही मतलब मेरे को मतलब इजी लगता है चैप्टर काफी।
इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चन लेंदी लेंदी आते हैं। 6 एंड 7 यूनिट में ये खास कर होता है कि उसमें क्वेश्चन लेंदी देता है वहाँ पर ना। थर्ड क्वेश्चन है सिडन चार्टर के लिए, लाइक सिडन चार्टर्स इनिशिएटिव वाज a responsive to the quest for solving the problems which is regions encountered day in and day out while dealing with organizations providing public services. But the introduction and implementation of citizen charter in the government of India has been difficult due to the old bureaucratic setup and the result attitudes of the workforce. Discuss the major obstacles that have been encountered in implementing the citizen charter initiatives. तो इसको स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग। 726 पर डिस्कशन करेंगे इसका। अभी इस बार सौरभ से पूछूंगा, सौरभ से, सुबह से, सुबह से, तीनों एस से पूछूंगा, 3 एस से पूछूंगा इस बार।
अटेम्प्ट किया? सर सर मैं बताऊं? हाँ सुधा, हाँ हाँ सुधा, अभी 3S से पूछेंगे ना, बताओ। सर सबसे पहले मैंने सिटीजन चार्टर को डिफाइन किया। सिटीजन चार्टर इज अ कमिटमेंट डॉक्यूमेंट issued by public authority that outlines the quality of service, timelines, right of citizen, and obligation of department aiming to ensure transparency, accountability, and responsive administration. उसके बाद सर मैंने बताया कि वाई सिटीजन चार्टर वर नीडेड, मतलब ऐसे डायग्राम फॉर्म में कि बिकॉज जो सिटीजन्स रेगुलेटरी फेस इशू जैसे डिले सर्विसेज, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नो लीगल फ्रेमवर्क फॉर इन्फोर्समेंट एंड हरासमेंट एंड रेड टेपिज्म, ये इश्यूज हैं सर। फिर वाई इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया हैज बीन डिफिकल्ट, बिकॉज मैंने पहला पॉइंट बताया है कि सर ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, क्योंकि जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, नॉट सिटीजन ओरिएंटेड। फिर सेकंड सर लैक ऑफ ट्रेनिंग, जो लैक ऑफ ट्रेनिंग में मैंने डिफाइन किया है, एम्प्लॉय आर नॉट ट्रेंड ऑन न्यू सर्विसेज स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन। जैसे हमारे हेल्थ सेंटर्स में स्टाफ को टाइमलाइंस पता ही नहीं होती है कि वो कब तक उसको सर्विस डिलीवरी करना है। थर्ड लिखा है नो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, जो सिटीजन चार्टर है नॉट लीगली बाइंड और कोई पेनल्टी नहीं होती है फॉर अ मीटिंग सर्विसेज। इसीलिए क्या कहते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या पासपोर्ट सर्विसेज टाइमली डिलीवर नहीं होता है। लैक सर उसके बाद मैंने लिखा है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, इवन पीपल को भी नहीं पता है। सर मेरे में थोड़ा सा एग्जांपल्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने बस पॉइंट्स में लिखा है। सर उसके बाद मैंने लिखा है वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच, मतलब सेम टेम्पलेट्स यूजेस अक्रॉस डिपार्टमेंट लीड टू जेनरिक। उसके बाद लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस, बट इसमें मैंने एग्जांपल दिया है सर, जैसे बीकर सेक्शंस के लिए, विमेन के लिए, एल्डरली के लिए, ऐसे स्पेसिफिक वो नहीं मेंशन होता है। सर उसके बाद मैंने लिखा है पुअर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, जो सिटीजन चार्टर प्रिपेयर विदाउट इन्वॉल्विंग सिटीजन और फ्रंटलाइन वर्कर, तो इसकी वजह से बहुत वो होता है सर। फिर उसके बाद सर इसमें मैंने कंक्लूजन सेकंड एआरसी का रिकमेंडेशन दिया, जिसमें सेकंड एआरसी बोलता है कि डिजाइन सेट करो, सेट स्टैंडर्ड करो, डेवलप करो कैपेसिटी, परफॉर्म, मॉनिटर, एवेल्यूट एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। फिर उसके बाद मैंने सर कंक्लूड कर दिया, सिटीजन चार्टर जो है उसका वर इंट्रोड्यूस टू मेक गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, citizen friendly, but their implementation suffered due to rigid bureaucracy, lack of training, poor awareness, and weak monitoring. सर ये इतना ही। ठीक है सौरभ, आप बताओ अभी एक बार। सर और ऑलमोस्ट सब सेम ही पॉइंट है। पहले मैंने सिटीजन चार्टर को डिफाइन कर दिया कि सिटीजन चार्टर इज द कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम सर्विस डिलीवरी, जैसे कि आईआरसीटीसी का जो सिटीजन चार्टर है। फिर सर मैंने इसके इश्यूज पे गया, तो इश्यूज पे सर मैंने ये लिखा कि मतलब इट इज नॉट अपडेटेड। फॉर एग्जांपल ये जो आईआरसीटीसी है यही अर्ली 2000 का बना हुआ है, जो एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से। दूसरा कि जनरल पब्लिक के पास कोई अवेयरनेस नहीं है इस चीज के बारे में, ना कोई इसको आगे मतलब इसको पता है। तीसरा कि ऑफिसर सर इसमें ट्रेंड ही नहीं होते, कभी उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल में ऐसा होता ही नहीं है कि सिटीजन चार्टर जैसी भी कोई चीज होती है तो उसकी वजह से उनको पता भी नहीं है, तो वो रिजिडली फॉलो भी नहीं होता है। फिर कोई सर इसका चौथा पॉइंट मैंने लिखा कि कोई इसका सेपरेट बजट नहीं है, कोई भी बजट निकलता है तो एज ए सिटीजन चार्टर के बारे में बात नहीं करते। सर फिर मैंने सॉल्यूशंस में लिखा कि यूएस मॉडल की तरह हमारे पास ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि 24 घंटे के अंदर इसको काउंटर कर दे, और हेल्पलाइन नंबर शुड बी प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे लोग इसको पता कर पाए। और इक्वली सर इसको थ्रू द मीडियम्स ऑफ सोशल मीडिया एक्सेट्रा मतलब बताना चाहिए कि सिटीजन चार्टर के बारे में भी अवेयर करना चाहिए। सर सेकंड की रिवॉर्ड डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको इक्वली फॉलो करता है तो उनको यूके मॉडल में है कि रिवॉर्ड डिपार्टमेंट जैसे तो यहाँ पे भी रिवॉर्ड डिपार्टमेंट होने चाहिए। सर ये नीति आयोग के रिपोर्ट में 2020 में इन्होंने एक चीज बोली थी। फिर सर मैंने एक पॉइंट दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने गाइडलाइंस दी थी कि आप जब भी जो भी सिटीजन चार्टर बनता है उसमें कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को बैठा के कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और फिर सर और कोई मेरे पास एक पॉइंट नहीं था, तो मैंने बस ये लिखा कि इट शुड फोकस ऑन प्रिंसिपल्स लाइक क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, और फिर
सर मेरे पास कोई इसका ना एग्जांपल मिल रहा था, तो कंक्लूजन भी सर उतना अच्छा नहीं मिल रहा था, बस इतने ही पॉइंट्स लिख के मैंने उसको एंड किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। सर इसमें मैंने ना एक, आप एंडिंग के लिए बोल रहे थे ना संस्कृत कोड से, तो सर इसमें मैंने यूज करने की कोशिश करी है, सर मैं बता एंडिंग बता रही हूँ सर मैं, बाकी पॉइंट्स तो सिमिलर थे। सिटीजन चार्टर मस्ट बी गाइडेड बाय जन सेवा परमो धर्म, so department should redesign character by understanding citizen real need and citizen charter by understanding citizen real needs and expectations. बढ़िया, अच्छा लिखा है ये वाला तो। एक बार इसको देखते हैं फटाफट। द सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव वाज रिस्पांसिबल टू द क्वेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्विंग। तो बेसिकली स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन से। इन इंडिया प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एफिशिएंसी, एथिकल सर्विसेज डिलीवरी। ये किसी ने गवर्नेंस में पढ़ा है क्या टॉपिक? Yes sir, मैंने पढ़ा है गवर्नेंस। It aims to make administration student centric by defining service standards, timelines, implementation mechanisms. ठीक है, तो यहाँ पर एक उसका ऑलमोस्ट डिफाइन ही किया गया है। देन पोटेंशियल ऑफ चार्टर promotes transparency and reduces corruption. Service standards reduce scope of rent seeking. Passport सेवा केंद्र improved processing time and reduce middleman. ठीक है, ऐसे ही लाइसेंस में भी strengthens accountability and ethical conduct. Charter clarify who is responsible for what. Like Karnataka Sankla, इसमें RTPS एक्ट penalize delays leading to the faster services. ठीक है, then improves student experiences, being professionalism, courtesy and student centric values into governance. Delhi Metro Rail Corporation upholds punctuality and safety standards, encourages performance culture, sets measurable indicators for staff performance. Many hospitals display waiting time standards to improve service quality. Then there are some obstacles implementing citizen charter. First one is structural and systematic obstacles, जिसमें रिजिड ब्यूरोक्रेटिक कल्चर की बात करेंगे, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टिल फॉलो पेपर फाइल सिस्टम, डिलेज टाइम लाइंस। सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट यही है। ठीक है, नो लीगल इन्फोर्समेंट, और जितने भी अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही ऑलमोस्ट IRS ऑफिसर हैं जिन्होंने सर्विस को छोड़ा है क्योंकि अभी पैसा कम हो गया इसमें। नो लीगल इन्फोर्सबिलिटी, most charters are voluntary, no penalties. Many municipal corporations display charters do not adhere to the service timelines. Bureaucratic fragmentation, जिसमें department must coordinate but coordination is weak. Urban services like building approval requires NOC for many agencies, delays जो कि अभी चल भी रहा है। This is design and content related obstacles. No participatory drafting. Hospital charters often miss critical student needs to like emergency response time. Vague and non-visible standards like terms like timely service lack quantification. इसमें ट्रांसपोर्ट चार्टर्स लेकिन फिक्स टाइमलाइंस फॉर इशूइंग ड्राइविंग लाइसेंसेस। फिर कुछ ह्यूमन रिसोर्स और बिहेवियरल ऑब्स्टेकल्स आ रखे हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, RTO ऑफिसर्स की बात है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, एथिकल सेंसिटाइजेशन, जिसमें पुलिस स्टेशन सर्विस चार्टर्स रिमेन इनइफेक्टिव ड्यू टू insensitive behavior. मैन पावर शॉर्टेज overloaded. देन student related obstacles, फिर lost in awareness। फिर यहाँ पर हमने सर्वे उसका मेंशन किया, इन कलेक्टरेट्स। एक वीक ग्रीवेंसेस रिड्यूस मैकेनिज्म, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड विद नॉन फंक्शनल ग्रीवेंसेस पोर्टल। देन टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग ऑब्स्टेकल्स, लैक ऑफ ई-गवर्नेंस, डिजिटाइजेशन, inadequate monitoring and evaluation. Then I have concluded the question with the transparent, ethical and student centric. अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या इसमें वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम आप लोग भी साथ साथ में बना लो भाई इसका। एक तरफ लिखते हैं सिटीजन चार्टर, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। ठीक है, अब दोनों को एक साथ में लिखेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले सर्विस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, देन टाइम बाउंड डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी दोनों साइड से, ठीक है, एंड देन इसके बाद में 3T। 3T में सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद में ट्रस्ट
ट्रांसपेरेंट ट्रस्ट एंड टेंजिबल्स, टेंजिबल्स, ठीक है। तो ये हम एक डायग्राम इसमें बना सकते हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक तो ये रहा, और एक फॉर्मूला बनाएंगे इसी के रेफरेंस से एक फॉर्मूला बनाते हैं। सिटीजन चार्टर सर्विसेज ग्रीवेंस रिड्रेस, सिटीजन चार्टर ग्रीवेंस रिड्रेस सर्विसेज एंड देन सिटीजन चार्टर, ठीक है। प्लस में टेंजिबल्स, टाइमलाइन और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इक्वल टू फ्रॉम एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी टू ongoing अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। एक ये इसमें हम लोग बना सकते हैं, सीढ़ी चार्टर का ऐसा कुछ आता है तो अब मैं थोड़ा सा आपको इन्हीं डायग्राम को बताऊं पहले, कुछ कुछ टॉपिक्स पे जो मैंने बना रखे हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स पे है तो कहीं कहीं से कॉपी पेस्टेड है, ये भी ऐसा नहीं है कि मेरा ही है भाई, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कुछ कुछ चीजों पे। बताऊं पहले बताओ, यस यस सर। सर। यस सर। एक निकालते हैं पहले पेज। अब सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसमें सोशल ऑडिट, ठीक है। सोशल ऑडिट आपने पढ़ा होगा। इसमें एक डायग्राम बनाते हैं, सोल ऑफ सोशल ऑडिट, ठीक है। जिसके अंदर तीन चीजें जो आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है। सबसे पहले क्या होता है वहां पर, जन सुनवाई, ठीक है। फिर जन भागीदारी, ठीक है, जन भागीदारी। फिर आता है जन कल्याण। बता सकते हैं भाई, जन सुनवाई, जन भागीदारी, जन कल्याण। अगर सोशल ऑडिट कुछ ऐसा आता है तो ये बनाओगे यहाँ पर आप, ठीक है। इसके बाद में आपका इसी में हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं सोशल ऑडिट का ही, ठीक है। तीनों को प्लस करेंगे। फाइनेंशियल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड सोशल ऑडिट, ठीक है। जिसमें फाइनेंशियल ऑडिट हमारा क्या लेके आएगा, एफिशिएंसी लेके आएगा। परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस, ठीक है। एंड सोशल ऑडिट एथिकल। भाई एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और एथिकल तीनों चीज मिलके क्या बनाएंगे, होलिस्टिक अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, ठीक है।
बनाया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, बढ़िया। एक कॉमन नेम आता है आप लोगों के लिए, विशल ब्लोअर एक्ट, उसको भी देखते हैं एक बार। ठीक है, तीन चीजें होती है इसमें भी। सबसे पहले प्रोटेक्शन टू विशल ब्लोअर, देन एक यहाँ पर ले देते हैं रिफ्यूजिंग पार्टिसिपेशन इन रॉन्ग डूइंग। ठीक है, एंड देन यहाँ पर एक्सपोजिंग रॉन्ग डूइंग। तो ये यहाँ पर इनकरेज कर देंगे इसको। प्रोटेक्शन टू विशल ब्लोअर एनकरेज किया इसने, रिफ्यूजिंग पार्टिसिपेशन इन रॉन्ग डूइंग, देन उसने क्या क्या एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज रॉन्ग डूइंग, देन फिर प्रोटेक्शन टू विशल ब्लोअर। ठीक है, एक करेंगे ये। इसमें एक डायग्राम और बना सकते हैं अभी हम लोग, जो इसी का है। सी करेज, कमिट, कॉन्सेंस, प्लस में पब्लिक इंटरेस्ट इज नैरो इंटरेस्ट। ठीक है, इक्वल टू नीड ऑफ विशल ब्लोइंग। ठीक है भाई, ये चीजें आप इसमें यूज कर सकते हो। हमने कल उसका निकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक क्वेश्चन किया ना शायद। यस सर किया था। Sir, need of विशल विसल ब्लोइंग। हम्म, सर एक बार ऊपर वाला डायग्राम दिखा दीजिए। ओके ओके सर। ठीक है, इसमें हमारे पास में जो रहेगा वो रहेगा मैं इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ठीक है, एक तो हमारा होता है गुड न्यूज, गुड एफिशिएंसी, इसमें आएगा गुड एथिक्स, और एक में आएगा गुड विजन। सबको बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे, ये वाला पार्ट है जिसको हम बोलेंगे 4P ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, 4P ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे? हमने तो गुड न्यूज, गुड एफिशिएंसी, गुड एथिक्स और गुड विजन पढ़ा है। तो सबसे पहले गुड न्यूज में प्रोसेस, गुड एफिशिएंसी परफॉर्मेंस, गुड एथिक्स पीपल, गुड विजन पर्पस। लिख सकते हैं भाई। देन
यहाँ पर बनेगा प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, लीगलिटी और एथिकलिटी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, लीगलिटी और एथिकलिटी, ये प्लस में बनाएंगे यहाँ पर। पहला मिनोरिटी शेयर होल्डर, दूसरा स्टेक होल्डर, एंड थर्ड वन इज शेयर होल्डर। इक्वल टू एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर और फिर सेकंड थर्ड में क्या लिखा? स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। ओके। स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। सर गुड न्यूज में जो ऊपर था उसमें पी क्या था सर? कौन सा पी? सबसे ऊपर प्रोसेस। एक और बता देता हूँ। आरटीआई का देख लेते हैं। आरटीआई का सबसे पहले इधर आएगा आरटीआई, और इधर आएगा, ये क्या होता है वैसे, बताओ कोई। ऑफिशियल सीक्रेट। ऑफिशियल्स। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट। ठीक है, तो एक ये हो गया। देन ये वाला हो गया जो बीच का रहेगा, सीक्रेट इंफॉर्मेशन अंडर ओएससी। ठीक है, अब इसके अंदर तीन चीजें हम लोग लिख सकते हैं। मोर ओवरलैप, मोर सीक्रेसी, ठीक है, और मोर कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ही ट्रेंड एंड प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, ट्रेंड एंड प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर।
देन सेकेंड वन यहाँ पर जो आएगा, ट्रेन प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर सो मोटो डिस्क्लोजर, जिसमें हम लोग सेक्शन 4 की बात करते हैं, सेक्शन 4। ठीक है। देन आरटीआई मूवमेंट, इसमें हमारा पैसा हमारा हिसाब, ठीक है, हम जानेंगे और हम जिएंगे। सर ये लिखना है प्रॉपर ये सब एग्जाम हमारा में? पैसा हमारा हिसाब, हम जाएंगे हम जाएंगे, हाँ हाँ लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई। सर अपने मोर सीक्रेसी के पहले वो क्या बोला था, मोर? मोर ओवरलैप, मोर सीक्रेसी, मोर कॉन्फ्लिक्ट। अभी जैसे प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस पढ़ रहे हैं ना, तो इसका भी देख लेते हैं। भाई ये मेरा नहीं है, कभी सोचो कि मैंने बना रखा है, मैं सिर्फ चैट जीपीटी से कुछ कुछ बनाता हूँ, और लेकिन ये किसी और के कंटेंट से उठा के बना रखा है। मैं इनोवेशन इतना नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ कलेक्शन ले रखा है, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस में ensuring प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, ठीक है। अब ये यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स, आरटीआई, स्वीडन चार्टर, सोशल ऑडिट, वर्क कल्चर, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, या कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस में सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल ऑडिट, वर्क कल्चर, यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंड्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। देन इंटीग्रिटी, इंक्लूसिविटी 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 और इनोवेशन। ठीक है। इंटीग्रिटी, इनोवेशन, इंक्लूसिविटी। सिटीजन सेंट्रिक, ठीक है, एथिकल, ट्रस्ट बेस्ड। क्या है भाई? इंटीग्रिटी, इंक्लूसिविटी, इनोवेशन प्लस में सिटीजन सेंट्रिक, एथिकल, ट्रस्ट बेस्ड, इक्वल टू में श्रेष्ठ सेवा नियतम। श्रेष्ठ सेवा नियतम।
श्रेष्ठ सेवानियतम, ये किसका है? इसका एम्स का मोटो है ये। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर किया होगा, उसमें मेंशन रखा हुआ है इसको। ठीक है, ऐसे और भी चाहिए क्या आप लोगों को कुछ? बताओ। Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो बैक टू क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा। मैं ट्राई करूंगा, इसका पीडीएफ अगर बन गया तो मैं भेज दूंगा आप लोग। अब फोर्थ क्वेश्चन है, सेम जो अभी फॉर्मूला बनाया है वो इसमें यूज करोगे आप, ठीक है? प्रोटीन गवर्नेंस वाला और पब्लिक लाइफ वाला वो इसमें यूज करोगे। करप्ट वाला भी दे रखा है, वो भी यूज कर सकते हो। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ वाला करप्शन पे फिर से सेम क्वेश्चन, सिक्स स्टडी चार्टर पे है, सेवंथ अकाउंटेबिलिटी पे है, अकाउंटेबिलिटी में। ठीक है, अब इन चीजों पे हम लोग अपना जो फ्रेमवर्क है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें जिसमें हम लोग अकाउंटेबिलिटी पे बात करते हैं, तो इस पे भी हम लोग कुछ देखते हैं बना पाते हैं तो बना देंगे, वरना इसका आंसर तो आपको लिखना ही है पूरा इसका। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप भाई घर से करना, मेरे को आ रही नहीं अभी फिलहाल। ओके सर। कल टाइमिंग यही रखना है क्या? क्योंकि बच्चे काफी मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चे मना कर रहे हैं। टाइमिंग यही रखें क्या? एक बार कैमरे ओपन करके बताओ भाई सारे, आप लोग क्या बैठे हो, बिस्तरों में बैठे हो ना? बताओ एक बार सब लोग, सब सर कैमरे ओपन टाइमिंग ये करो। बेस्ट है सर, सुबह की टाइमिंग अच्छी है सर। हाँ, और ये सही है सुबह की क्योंकि टाइमिंग अच्छी है। क्योंकि बच्चे सुबह ठीक है। सर ये बेस्ट है, बच्चे आ फिर नहीं पा पूरे रहे दिन ना। पढ़ाई हो जाती है, फिर क्लास का नहीं रहता बीच में पूरे दिन, अगर सुबह सुबह हो जाता अरे है तो। मेरे लिए तो बेस्ट नहीं हो रहा ना, क्या करें? यही रखे, टाइमिंग यही रखे। यस ये सर। सर। सर टाइम आदत भी बन यस रही है सर। सर उठने की। हाँ हाँ सर। सर हाँ, और सर आदत बन रही है सर सुबह सर अच्छी लगी उठने की। पढ़ाई हो रूटीन जाती बन जा रही है। चलो फिर यही रखते हैं। कल कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो अपना इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। कल फर्स्ट है ना इकोनॉमिक्स में, आई थिंक क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ है। इंक्लूसिव यस ग्रुप। सर। यस सर। हाँ हाँ, बढ़िया सर वो बढ़िया बढ़िया। प्लानिंग वाला पार्ट है स्टार्टिंग में तो। कौन सा पार्ट है? प्लानिंग। मैंने 5 दिन में तो कवर करने के लिए बोला ना उसको, 5 डेज में तो कवर करेंगे। तो 5 फैक्टर्स में जो जैसे मैंने कराया है वैसे ही सुबह का इसको एक किया होगा। हाँ, स्वाद। ठीक है, फिर कल फिर से कल 6 AM ही रखते हैं फिर इसको इसको ही कंटिन्यू करेंगे, प्रीलिम्स तक अब इसको ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके सर, बस वो थैंक भाई यू। मेरे को अब नींद आ रही है मेरे को आज। चलो ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, इसके अभी कंप्लीट करना है क्वेश्चन सारे, ठीक है? ओके यस सर। ओके नमस्ते सर। ओके ओके।